तो गाइस अभी हम फिर स्टार्ट करेंगे आज के सेशन में। हम लोग मैं और केविन प्रॉपर डिस्कस करेंगे जीसॉक क्या होता है, ओपन सोर्स क्या होता है और हमारी पूरी जर्नी इसके फिर हमने स्टार्ट करा था गूगल समर ऑफ कोड में और और भी ओपन सोर्स ऑर्गेनाइजेशंस में कैसे स्टार्ट करा था और कंट्रीब्यूट वगैरह करा था। और क्वेश्चंस वगैरह हम सब लास्ट में पूछेंगे, तो जो भी होगा क्वेश्चंस गाइस चैट में टाइप कर देना और बाकी लास्ट में सारे क्वेश्चंस हम आंसर कर देंगे। ओके 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 ठीक है ठीक है। तो एक एक्सक्लूसिव फॉर क्रू मेंबर्स है ये सेक्शन, कम्युनिटी के लिए नहीं है, तो और इसकी रिकॉर्डिंग भी हम शेयर कर देंगे। तो केविन, ऑन टू यू। Yep. Can you guys start? हाँ जी हाँ जी। Okay. So all of you know who we are, Kaivalaya and Raunak this side, and we are going to start this session. So first of all, what is open source? So just taking an example and know about the meeting. यहाँ पे कौन कौन VS Code यूज़ करता है? हाँ जी मैं बैठती हूँ। और क्रोम, ऑफ एवरीवन। कोर्स सभी करते हैं। या ऑफ कोर्स एंड्रॉयड यूज़र्स भी यहाँ पे बहुत होंगे। या या सो दिस इज़ अ कूल थिंग कि हम लोग ऑलरेडी ओपन सोर्स एप्लीकेशन से फेमिलियर हैं एज अ यूज़र पर्सपेक्टिव, बस हमारे को डेवलपर पर्सपेक्टिव से भी थोड़ा सा देखना है आगे। स्टार्टिंग विद द सेशन, breaking down the open source into open and source. So what is open? Simple. Open means free, means anything which is transparent and not hidden, private, also restricted. And going forward to the source, you can refer the source to the internal code that makes the application works, uh, like the recipe of any dish. So it is like the main thing of the application, from where the application start, which is the core, which is the source. Okay, which makes open source. So open source is a open project. You can view the source of the project freely, which gives the project transparency, and also promotes collaborative growth, transparency, community, and giving back. But how? So कोलैबोरेटिव ग्रोथ तब आती है जब हम एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करते हैं सब मिलके, विच इज़ सो ऑब्वियस। एंड ट्रांसपेरेंसी एज अ सेड, जब कोई भी सोर्स कोड ओपन टू ऑल होता है तो फिर विच लीड्स टू द ट्रांसपेरेंसी ऑफ द कोड और द source of the application. Or community, you work with the community. Community also gives you support, and also as you giving to the community, you giving valuable valuable contributions. The community also gives you back some support, also the future opportunities. And never do's in open source is like unnecessary contributions. सो अकॉर्डिंग टू मी, जब मैंने अपना ओपन सोर्स करा था कॉन्ट्रीब्यूशंस चालू, सो मेन थिंग मेरे को ये दिखी थी वहाँ पे कि वहाँ पे अननेसेसरी कॉन्ट्रीब्यूशंस बहुत सारी हो रही हैं, विच वी नीड टू अवॉइड बाय डूइंग अ वैल्यूएबल कॉन्ट्रीब्यूशंस अननेसेसरी इन काइंड ऑफ। जब मैंने अपना ओपन सोर्स जर्नी स्टार्ट करी थी तो मैंने देखा था वहाँ पे लोग ना बस ऑर्गेनाइजेशन लीडर बोर्ड के लिए ना हर एक रिपोजिटरी में वो सिर्फ छोटी छोटी कॉन्ट्रीब्यूशन मांग कर रहे हैं, और वो कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है, वो बस जाके कर्सर चेंज करके आ रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे थे लीडर बोर्ड पे अपना टॉप बिठाना है उनको। तो वो चीज़ हमारे को थोड़ी अवॉइड करनी है। ऑल्सो the 90% of tools and softwares which we use in daily life are open source. Just for an example, Chrome is an application which made it from the Chromium project. Okay, and also we uses Visual Code, Android, which is also open source. We use
Linux based applications, and these are some tools. You can look over this and take a snapshot of this or screenshot. We have Git, Prometheus, Docker, Kubernetes, Mongo. Here we have Chromium, and why should we care? Just a second. Yep. Why should we care? Why should we investing our precious time to open source? So open source is not just about the code; it's about the impact which you are giving to the community. So it just shows the how valuable contributions that you are doing to a community or a project. Absolutely amazing learning experience. So according to me, जब हम किसी कम्युनिटी को एक कम्युनिटी के साथ काम करते हैं तो हमारे को वहाँ से एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस गेन होता है जो कि हमारे को नॉर्मल प्रोजेक्ट्स खुद से प्रोजेक्ट्स बनाएंगे तो उसमें कभी भी नहीं मिलेगा। एंड जब हम किसी कम्युनिटी के साथ काम कर रहे हैं तो वहाँ पे हम बहुत बड़े बड़े इंजीनियर्स के साथ काम कर रहे हैं विच impacts our experience in very positive way. Next, the sense of achievement. जब भी हम किसी प्रोजेक्ट में एक फर्स्ट कंट्रीब्यूशन करते हैं, जब भी हम किसी एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट में एक छोटी सी कंट्रीब्यूशन भी करते हैं ना, तो फिर वो सेंस ऑफ अचीवमेंट बहुत ज़रूरी है एक मोटिवेशन के लिए भी एंड आगे की पूरी ग्रोथ के लिए भी अपॉर्चुनिटीज़ को अनलॉक करती है वो सेंस ऑफ अचीवमेंट। Getting involved and building your network. So as we works with the community वहाँ पे हमारी एंगेजमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ती है बाकी कंट्रीब्यूटर से, मेंटर से एंड ओनर से। सो वो चीज़ भी बहुत इम्पॉर्टेंट है आगे चल के विच लीड्स टू social building, networking, and also it that things promote you to get the job done by the end of the day and also supports you. Being mentored by highly experienced developer, so it is like that uh, that we works with the highly experienced engineers. uh, uh, आवाज़ आ रही है मेरी? आवाज़ आ रही थी अभी? हाँ, हाँ, अब आ रही। ओके। सो बीइंग मेंटर बाय हाईली एक्सपीरियंस्ड डेवलपर। सो जब भी हम कम्युनिटी के साथ काम करते हैं ऑब्वियसली अच्छे इंजीनियर्स के साथ काम करते हैं एक प्रोजेक्ट के अंडर काम करते हैं तो वहाँ पे जो कम्युनिटी गिविंग बैक होती है वहाँ पे मेंटर्स बहुत अच्छे और एम्पैथेटिक होते हैं एंड हमारे को उनसे बहुत सीखने का मौका मिलता है। सो इट इज़ लाइक दैट एंड in real world open source you have the right to control your own destiny. It is a famous quote by Linus Torvalds, a former the maker of the Linux. And if we talk little about the Git and GitHub, uh, first we can talk about the what is version control system. So version control system is basically a tool which helps you to track the changes and maintain the code base of your project. So it is like कि हर एक स्टेप पे तुम्हारा कोड बेस काउंट करता है कि किस सो फ्लो को डिज़ाइन करने के लिए काम आता है एक वर्जन कंट्रोल सिस्टम। फर्स्टली एक जो गिट है गिटहब है दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। व्हाट इज़ गिट? Git is a version control system which simply helps you to track the code base of your project. यहाँ पे यहाँ पे थोड़ी सी गिटहब की कमांड्स हैं इफ़ वी टेक लुक इनटू इट। जैसे कि क्लोन हो गया, इनिट हो गया। सो क्लोन इज़ यूज टू clone the repository locally from the GitHub, and there are some commands like push and pull. Push means to the like push the current commit
current commit data to the GitHub, and these are some commands like that. Okay. So what is GitHub? So GitHub is a platform which helps you to manage your whole project. And what is Git now? So Git is basically a tool to use GitHub efficiently. Now, uh, how Git and GitHub works together? Simple. Git tracks the code base locally, commit changes time to time. GitHub online to store and share the repo means it stores the repo. A repo means uh, the directory of the project and the whole code base of the project. GitHub Online stores and shares a repo. Stores means the the Git push to the repository, and repository stores uh, the commit of that time. The flow of GitHub I'll show you in the next PPT. Yup. So here you can see the workflow of the GitHub. सिंपल हम गिटहब से फोक करते हैं. फोक मीन्स द cloning of repository on the GitHub itself, not locally. Then we clone the repository locally. We do changes. We commit the changes. We push changes to our forked repository. Then forked repository makes a PR to the base repository. Why to use? So GitHub's manage using the workflow, promotes open source. Obviously, you have a platform which have the whole code base transparent to all of the users and developers, which promotes open source. You can also make your project and push to the GitHub. You can also contribute to the projects which are on the GitHub. You can maintain the projects over on the GitHub. So here is the open source model, which is a flywheel. So ये बस ये चीज़ शो करता है कि एक यूज़र स्टार्ट कहाँ से करता है अपनी कंट्रीब्यूशन. इफ़ यू आर यूजिंग अ क्रोम फॉर एन एग्जांपल, सो फर्स्टली क्या करते हैं, हम यूज़र ही होते हैं क्रोम के. हमारे को पता लगता है कि हाँ क्रोम ऐसा एक ब्राउज़र है, हम उसको यूज़ कर रहे हैं. फिर धीरे धीरे हम उसकी एडॉप्शंस एडॉप्ट करने लग जाते हैं सॉफ्टवेयर को. फिर हमारे माइंड में कभी एक थॉट आता है कि यार ये वर्क कैसे कर रहा है. यू गो डाइव डीपर इनटू इट, देन यू टॉक अबाउट द कंट्रीब्यूशंस. फिर हम एक डेवलपर माइंडसेट से सोचने लग जाते हैं. फिर हम अपनी कंट्रीब्यूशन शो करते हैं टू द क्रोमियम. ओके. और कंट्रीब्यूशंस करने से क्या हो रहा है, हमारी ग्रोथ हो रही है. ग्रोथ ऑब्वियसली सक्सेस. एंड सम प्रीक्विसाइट्स ऑफ ओपन सोर्स. बेसिक प्रोग्रामिंग नॉलेज, जो कि आई गेस यहाँ पे सभी को ही है. फर्स्ट ईयर से याद आती है हर इतनी तो. कुछ कुछ तो स्कूल से भी करके आ रखे होते हैं, पाइथन एंड ऑल. सो बेसिक प्रोग्रामिंग नॉलेज तो सबको ही है यहाँ पे. एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ गिट एंड गिट हब, इसकी थोड़ी सी नीड पड़ती है जब भी हम ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन चालू करते हैं. पर्सनली मेरे को, जब मैंने अपनी फर्स्ट कंट्रीब्यूशंस करी थी, मेरे को गिट हब की बिल्कुल नॉलेज नहीं थी. मैंने स्क्रैच से चालू करा था साथ साथ में. So familiarity with the documentation. So documentation is like the, if you are like contributing to the Python is also an open source programming language. So documentation is very important to understand about it. Okay. So documentation carry all the main things that Python are doing, all contains all the feature, contain all the flow of Python, that how you can use that or contribute to that. So documentation is like the whole recipe book of the dish. Okay. And there will be no one, there's always the documentation. Yep. So we can take an example. If you are contributing to that project
जहाँ पे तुम्हारे को लगता है कि तुम बिल्कुल ही अकेले हो, यहाँ पे कोई भी नहीं है हेल्प करने के लिए, तुम बस जाके एकदम से जीपीटी पे टाइप कर रहे हो विदाउट एनी नॉलेज, सो दैट थिंग्स वर्क्स बट the success rate is very low. So what you can do is the you can follow the documentation of the particular project which you are contributing to. These are some of my contributions, as you can see. So मैंने personally Hacktoberfest 2024 में contribute करा था, and here are my GSoC contributions and learning from my contributions. So जब मैंने अपने पीक टाइम पे कंट्रीब्यूशंस करी थी ना, तो मेरे को सिर्फ यही लगता था कि मेरे को उस टाइम पे कुछ नॉलेज नहीं है, पर एट द एंड ऑफ द डे मेरे को ऐसा लगता था कि वहाँ पे जितनी भी मैं कंट्रीब्यूशंस कर रहा हूँ ना, वो एक वैल्यू क्रिएट कर रही हैं, विच इज़ लाइक समथिंग सेंस ऑफ अचीवमेंट विच आई एम फीलिंग अबाउट दैट। एंड मेरी कंट्रीब्यूशन ने मेरे पे क्या इम्पैक्ट करा। सो उस टाइम पे मेरा टेक स्टैक भी इतना बढ़िया नहीं था, एंड आई पुश्ड माई सेल्फ टू सम लिमिट। मेरे को उस समय जावास्क्रिप्ट की नॉलेज थी, सो आई लर्नड अबाउट समथिंग, आई learned about the React that time, and which is I think a good contribution to uh, to my personal achievement, also to the organization which I am working for. Problems faced while contributing. यप। सो सबसे बड़ी दिक्कत वहाँ पे ये होती थी कि जब भी मैं किसी प्रोजेक्ट के साथ वर्क कर रहा होता था ना, तो वहाँ पे 100 जने होते थे एक ही पर्टिकुलर चीज़ को करने के लिए। तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या होता था, जब एक ही फ़ोल्डर पे इतने सारे जने काम कर रहे हो ना, तो मर्ज कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत सारे आते थे, और वो मेरे लिए गिटहब भी तब बिल्कुल नया नया था, और मर्ज कॉन्फ्लिक्ट इज़ लाइक पूरा मैश्ड अप होते हो जाती थी चीज़ें। सो वहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत हुई थी मेरे को, एक ही पीआर पे मेरे को 2-2 3-3 दिन का टाइम देना पड़ता था, बट समहाउ आई मैनेज दैट एंड कर दी थी कॉन्ट्रीब्यूशंस। द बिगेस्ट ड्रॉबैक इन दीज ऑर्गेनाइजेशंस, जब भी इफ़ यू वर्क विद द स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, नॉट दैट बिग ऑर्गेनाइजेशन, सबसे बड़ी दिक्कत वहाँ पे यही आती है कि बहुत लोग ना सिर्फ लीडर बोर्ड के लिए अपने आप को पुश कर रहे हैं आगे। मतलब बेसिकली वो पुश ही नहीं कर रहे, सिर्फ लीडर बोर्ड पे जमे रहने के लिए वो लोग वहाँ पे प्रेजेंट हैं। मीन्स कि वो लोग बस हर एक प्रोजेक्ट में जा जाके एक छोटी छोटी कॉन्ट्रीब्यूशंस कर रहे हैं, जो कॉन्ट्रीब्यूशंस उनकी पर्सनल ग्रोथ के लिए कभी कभी काम ही नहीं आ रही। व्हाट इज़ दैट कॉन्ट्रीब्यूशन? सो जब मैं काम कर रहा था ना, जो मैंने बताया था कि कर एक ही हर एक वेबसाइट पे जाके बस कर्सर चेंज करके आ जा रहे हैं, क्यों? क्योंकि उनको कंट्रीब्यूशन के पॉइंट्स मिल रहे हैं, पॉइंट्स लीड्स टू द लीडर बोर्ड लीड्स, एंड बस वही था कि लीडर बोर्ड के लिए सब लड़ रहे हैं वहाँ पे, तो विच इज़ द बिगेस्ट ड्रॉबैक ऑफ दीज ऑर्गेनाइजेशंस। नाउ आई एम वेलकमिंग रौनक। रौनक। Thank you, Kevin. It was great introducing open source. Let me share my screen. It's visible, right? Screen visible है ना guys? यप। Yes. ठीक है, तो अब हम बात करेंगे गूगल समर ऑफ कोड क्या होता है, और जैसे केविन ने बहुत अच्छे एक्सप्लेन करा ओपन सोर्स क्या होता है। तो गूगल समर ऑफ कोड बिट्स नॉट बर्गर्स। तो सिंपली पुटिंग, गूगल समर ऑफ कोड एक प्रोग्राम है जो कि गूगल कंडक्ट करता है ऑन अ ईयरली बेसिस। तो उसमें जो ऑर्गेनाइजेशंस होती है वो गूगल के पास जाके अप्लाई करती है। ये ऑर्गेनाइजेशंस क्या होती हैं, कुछ कंपनीज होती हैं जो कि गूगल पे के पास जाके अप्लाई करती है और अपने प्रोजेक्ट शेयर करती है इनके साथ। और फिर जो कंट्रीब्यूटर्स होते हैं वो इन प्रोजेक्ट्स पे कंट्रीब्यूट करते हैं और गूगल इनको सिलेक्ट करता है टू वर्क इन द समर। सो इट हेल्प्स की गाइडेंस मिलती है मेंटर्स वगैरह से। और
These are the stats. Google Summer of Code Kit. It's a global program and a very prestigious program. 21,000 plus new open source contributors have contributed from 123 countries or ITSR mentors. 46 million lines of code written. So what it is not an internship. It is a program, and it's not a competitive exam that you have to crack or any trend that you have to follow. It's not like कि मेरे को अगर GSoC में contribute करना है तो मतलब मेरे को अगर open source में contribute करना है तो मेरे को Google Summer of Code crack करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है. So why one should apply for such programs? So number one, it helps to gain the international exposure. That's Kevin also highlighted. Ki you are working with some of the highly experienced engineers with the community, and it's a springboard to your open source world. मैंने जब अपना ऑर्गेनाइजेशन से स्टार्ट करा था विच वाज जेनकिंस, तो उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ उस ऑर्गेनाइजेशन पे कंट्रीब्यूट करने के बाद आई वाज हेविली इंटरेस्टेड इन द ओपन सोर्स थिंग. And also you are practically applying your knowledge, not just limited to what your college is teaching or what your classroom has. So practically apply हो रही है knowledge बड़े बड़े projects में. So that's the motivation behind it, and it helps to obviously gain your skills. So let's go back in time कि ये सब start कैसे हुआ था Google Summer of Code और ये open source and all. सो गूगल क्या कर रहा था, इट्स एन इंटरेस्टिंग थिंग कि गूगल एक्सपेरिमेंट कर रहा था कि उनको ऐसा कुछ प्रोग्राम वगैरह बनाना था कि उनका मेन गोल था कि स्टूडेंट्स को हेल्प हो कि वो बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स में अपने समर टाइम में कंट्रीब्यूट करें और एक्सपीरियंस गेन करें. सो दे स्टार्टेड दिस प्रोग्राम और उसके बाद से इट्स रनिंग वेरी वेल, एंड द मेन आइडिया वाज टू गेट एक्सपोज़र रिलेटेड टू वर्क बाय वर्किंग विद दीज़ ऑर्गनाइजेशंस. तो अभी हम प्रोसेस डिस्कस करते हैं इसका होता क्या है GSoC का. तो फर्स्टली जो ऑर्गेनाइजेशंस होती है गूगल अपने पोर्टल पे दे हैव अ पोर्टल. तो गूगल अपने पोर्टल पे ऑर्गेनाइजेशंस लिस्ट करता है, वही ऑर्गेनाइजेशंस जो कि सिलेक्टेड होती हैं. तो कुछ रिपीटेड ऑर्गेनाइजेशंस होती है जो कि हर साल आती है, and then they apply for Google Summer of Code. Then Google selects these organizations. फिर we as a contributors as a student हम जाके इन organizations में अपना एक proposal submit करते हैं. उस proposal में क्या होता है कि जो भी हम summer time में काम करेंगे, 3 months का होता है ये standard period GSoC का. उस समर टाइम में हम क्या एग्जैक्टली करने वाले हैं, व्हाट कोड वी विल बी राइटिंग, एक हाई लेवल ओवरव्यू कि हम ये फीचर्स डेवलप करेंगे उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए. सो वी सबमिट दैट प्रपोजल एंड देन गूगल सिलेक्ट्स दीज कंट्रीब्यूटर्स. सॉरी, नॉट गूगल सिलेक्ट, द ऑर्गेनाइजेशन सिलेक्ट दीज कंट्रीब्यूटर्स एंड देन गूगल गिव स्टाइपेंड टू दिस कंट्रीब्यूटर्स. सो गूगल का मेन इतना रोल नहीं होता, गूगल सिर्फ स्टाइपेंड वगैरह और बीच में एज अ मीडिएटर रहता है. जो मेन रोल होता है वो ऑर्गेनाइजेशन का और एक कंट्रीब्यूटर यानी स्टूडेंट का होता है. सो बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं फर्स्ट स्टेप में और क्वेश्चंस भी होते हैं सबके माइंड में कि हाउ डू आई चूज अ प्रोजेक्ट और एन ऑर्गेनाइजेशन, हाउ डू आई सेट अप द डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, हाउ टू आस्क गुड क्वेश्चंस, हाउ टू चूज फर्स्ट इशू, एंड शुड आई अंडरस्टैंड द होल कोड बेस एट वंस, क्योंकि बहुत बड़े कोड बेस होते हैं. व्हिच ब्रिंग्स मी टू माय नेक्स्ट पॉइंट कि इतने बड़े कोड बेसेस हैं और अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस है, सो वेयर डू आई इवन बिगिन, इट्स काइंड ऑफ ओवरवेलमिंग एज वेल. So how do we choose an organization? Like ऑर्गेनाइजेशन चूज करने की दो अप्रोचेस होती हैं गूगल के पोर्टल से. फर्स्ट ऑफ ऑल वी लर्न द स्किल्स एंड देन वी चूज एन ऑर्गेनाइजेशन. दिस इज अ टॉप डाउन अप्रोच. दिस इज व्हाट आई डिड फर्स्ट. मैंने जेनकिंस में कंट्रीब्यूट करा था. तो जेनकिंस इज अ जावा बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन. तो आई न्यू जावा एट दैट टाइम एंड देन आई जस्ट चोज दैट ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज इट वाज हैविंग अ गुड स्केल ऑफ इम्पैक्ट. और दूसरी अप्रोच क्या होती है, कुछ लोग दूसरी अप्रोच भी प्रेफर करते हैं. दे फर्स्ट लर्न द स्किल्स, दे फर्स्ट चूज एन ऑर्गेनाइजेशन एंड देन दे लर्न द स्किल्स. तो दोनों अप्रोचेस प्रेफर कर सकते हैं. एंड दीज आर द मेट्रिक्स अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन चूज करनी हो दैट आई प्रेफर, कि people should be open to learn in the community and the community should be really active. एंड एक अच्छी बात होती है जितनी ज्यादा कम्युनिटी की डॉक्यूमेंटेशन है उस प्रोजेक्ट की, दैट्स अ वेरी गुड इंडिकेशन कि वो प्रोजेक्ट और कम्युनिटी बहुत इंक्लूसिव है. और जो हेल्प होती है न्यू कमर्स को, वो न्यू कमर्स को बहुत ज्यादा ऑन बोर्ड करने में हेल्प करते हैं. और
अच्छे इंजीनियर्स हैं उस कम्युनिटी में। स्केल ऑफ इम्पैक्ट मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि जो जो प्रोजेक्ट है उसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा है, या फिर इट हैज़ द पोटेंशियल कि उसका इम्पैक्ट बड़ा हो सकता है। जैसे जो मेरा वाला प्रोजेक्ट था वो इतना बड़ा नहीं था, मतलब उसका इतना वाइडली यूज़ नहीं था कम्युनिटी में, बट उसका पोटेंशियल था कि वो बहुत ज़्यादा यूज़ हो सकता था। एंड एट द एंड ऑफ द डे व्हेन वी कंप्लीटेड द प्रोग्राम, वो ऑलरेडी 400 प्लस प्लगइन्स का मेटाडेटा स्टोर करा चुका था। तो इट हैड द पोटेंशियल एंड वो अपने पोटेंशियल पे फिर थोड़ा-सा रीच भी करा था। एंड बहुत सारे लोगों के माइंड में होता है कि आई डोंट हैव द नॉलेज ऑफ द टेक स्टैक, सो हाउ डू आई स्टार्ट? सो इवन इफ यू आर familiar with 30 to 40% of the tech stack what that organization is demanding, you're good to go। और बाकी जो स्किल्स होती है you learn by doing on the go। So filtering organization की गूगल समर ऑफ कोड का पोर्टल है। आई विल जस्ट शो यू एज़ वेल। यहाँ पे जाओगे गूगल समर ऑफ कोड का पोर्टल, ये 2025 का लास्ट प्रोग्राम। सो इट हैपेंस फ्रॉम मई टू सितंबर, जो इनका स्टैंडर्ड पीरियड होता है। सो दीज आर द ऑर्गेनाइजेशंस। यहाँ पे व्यू ऑर्गेनाइजेशंस में जाओगे, यहाँ पे दे हैव फिल्टर्स कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिलेटेड मेरे को कोई ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट करनी है, आई विल जस्ट सी दैट। ओपीआर, क्लाउड सीवी। अगर मेरे को लेट्स से क्लाउड नेटिव रिलेटेड कोई इंफ्रास्ट्रक्चर एंड क्लाउड ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट करनी है, मेशरी इज अ गुड ऑर्गेनाइजेशन, क्यूफ्लो, गिटलैब। तो ये सारी बड़ी-बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस है, प्रोमीथियस, जिनके आप कोड भी देखते होंगे। इसमें अगर जैसे मेरे को लैंग्वेजेस रिलेटेड देखनी है, तो लैंग्वेजेस रिलेटेड भी काफ़ी सारी ऑर्गेनाइजेशन, पाइथन सॉफ्टवेयर फाउंडेशन, सो दीज़ आर द कंट्रीब्यूटर्स जो कि उस पे वर्क कर रहे हैं। जैसे लेट्स से अब मैंने जेनकिन्स सर्च करा, तो ये इस साल के कंट्रीब्यूटर्स थे। So this is the project which was I contributing to। एंड जब जब इस व्यू कोड पे क्लिक करोगे तो व्यू कोड पे सारी जो भी 3 मंथ्स की कॉन्ट्रीब्यूशंस उस पर्सन ने करी है, वहाँ पे उसका या तो ब्लॉग होगा या फिर उसका कुछ रिसोर्स होगा। तो यू कैन रीड दिस ब्लॉग्स, उस कम्युनिटी से रिलेटेड इंटरैक्ट कर सकते हो, और इसमें सारे लिंक्स होते हैं नीचे स्लैक वगैरह के, और इनके चैनल्स के प्रपोजल्स होते हैं। सो यू कैन सी दैट। These filters help you choose all the organizations। More than 200 plus organizations listed होती हैं, 185, and काफ़ी अच्छी organizations होती है। So you can choose 2 to 3 organizations based upon your tech stack and interest, and then उससे फिर start कर सकते हैं contributions। If someone asks you कि let's say you are an interview दे रहे हो, तो कोई पूछ रहा है कि टेल मी व्हाट इज गिट। गिट इज ऑल्सो एन ओपन सोर्स टूल। सो यू से लाइक कि आई एम अ कंट्रीब्यूटर इन इट। सो वो एक बहुत अच्छी चीज़ हो सकती है कि दैट यू आर इन्वॉल्व विद सच बिग प्रोजेक्ट्स जो कि इतने वाइडली यूज्ड है कम्युनिटी में। 6 pillars of success that helped me according to my experience। First, you submit a good proposal, very important। You write good quality code, you use the project, and you create a lot of value। The main goal is कि value create करनी है community के लिए, and कुछ meaningful create करना है। That's the main goal। So you get involved with the community and asking good questions। So ये 6 pillars हैं। इसमें से भी अगर मैं सिर्फ 3 चीज़ें बोलूँ जो main important होती है, contributions, अच्छा proposal, गेट इन्वॉल्व विद द कम्युनिटी, बस ये 3 चीज़ें चाहिए होती हैं। हाउ टू अप्रोच मेंटरशिप। तो अब जैसे ऑर्गेनाइजेशंस में जाएँगे तो वहाँ पे यू विल फाइंड मेंटेनर्स, एंड जो उस प्रोजेक्ट को काफ़ी टाइम से मेंटेन कर रहे हैं, और जो काफ़ी अच्छी कंपनीज़ में काम भी कर रहे हैं, एंड दे आर आल्सो वर्किंग फॉर फ्री टू मेंटेन दीज़ ओपन सोर्स प्रोजेक्ट। दैट्स अ वेरी गुड पार्ट ऑफ इट। So asking good questions at that time is really very important because they are very busy and they don't have time to answer each and every question. So Jones was my mentor. So I have an example of a poorly structured question. So I say ki, hey Jones, I am getting problems running this tool locally. When I try to run this, I am getting this error। So if I'm stuck, मैंने ये क्वेश्चन पूछा, मान लो, तो इट्स अ वेरी पुअरली स्ट्रक्चर्ड
question. As you can see, it lacks context. It is not descriptive at all, and it lacks the effort that you're putting, and you're putting all the effort to the maintainer or the painter or whatever. और ये एक well structured question हो सकता है, जैसे let's say I'm asking कि hey Jones, upon running the tool, I am encountered this and this error. I have read this documentation. I am using this version of Maven, and these commands I did. These are the environment variables I exported. And after, you're also having a suggestion in the end that maybe the documentation is outdated or I might have missed something. So as you can see, this is a well structured question which is clearer, provides context, and make it easier for the other person to help you. So the more you make easier for the other person to help you, the more your chances are of getting help. So most of the time when you ask for help, what these mentors do, they don't provide you directly with the answer. Rather, they just give you the documentation. Let's say I'm asking a question, so they will be like, "Hey, Ronak, just look at this documentation. You will find something useful." So they point you to the resource or whatever, so that you can look upon yourself. They don't like spoon feed everything, which is a good thing as well. That brings me to my next part: how to draft a good quality proposal. So, number one, be as early as you can. The more early you are, the better chances you have to get feedback on the proposal from the mentors. And you show proof of work. Proof of work कैसे दिखाया हमने? Contributions करके code contributions to that project जो कि उस प्रोग्राम से पहले करनी है. Like अभी GSoC जैसे होगा वो होगा अराउंड मई में. तो मई में जो जीसॉक होगा उससे पहले जो कंट्रीब्यूटर्स होंगे, जो उन्होंने अपनी कंट्रीब्यूशंस करी होंगी, दे शो प्रूफ ऑफ वर्क। तो तभी तो एक मेंटेनर जो है उनको सिलेक्ट करेंगे अपने प्रोग्राम में। बिकॉज़ इफ यू आर आल्सो अ मेंटेनर, व्हाई वुड समवन सिलेक्ट यू इन कंपैरेटिवली टू अदर पर्सन जो जितना स्टार्टिंग से कर रहा है, दे आर मोर फ़ैमिलियर विद द कोड बेस एंड दे हैव द कॉन्फिडेंस कि हाँ, वो कर लेंगे। So you show proof of work by your code contributions and you submit a good quality proposal as early as you can. And फिर उसमें you iterate from the mentors कि उसमें feedback लेना proposal में, they tell you some changes and you add timelines जैसे this was my proposal. um, मैंने इसमें ऐसे add करा था that कि we will be developing these features and these are the time it would take and these are the dates, proper timeline mention करी। और ज़रूरी नहीं है जो टाइम हम मेंशन करते हैं एग्ज़ैक्टली वही होना चाहिए, बिकॉज़ मेरे को याद है कि जो मैंने प्रपोज़ल सबमिट करा था और जो एक्चुअल में इम्प्लीमेंट करा था जीसॉग में, उसमें बहुत डिफरेंस था। तो वो ट्यूनिंग होती रहती है, मतलब जब मीटिंग्स वगैरह होंगी, ब्रेनस्टॉर्म करोगे और ज़्यादा, तो वो प्रपोज़ल और ज़्यादा रिफाइन होते जाएगा और फिर जब इम्प्लीमेंट करने की बारी आएगी, कुछ और ही इम्प्लीमेंट हो रहा होगा। तो ये चीज़ बहुत नॉर्मल है। तो वन डे आई वाज़ ऑल्सो प्लेइंग चेस विद माय मेंटर। तो वीकेंड पे था, तो दे वर लाइक कि डू यू नो रौनक कि यू आर द ओनली वन इन जेनकिंस हु रिसीव्ड अ फुल स्कोर इन जीसॉक सिलेक्शंस दिस ईयर। सो दे सेड मी कि मतलब जो मेंटर्स होते हैं बिफोर सिलेक्टिंग यू इन GSoC, they rate your proposal, they rate your contributions you did, and they rate your involvement with the community. So इन 3-4 metrics के बेस पे they assign you some score and उसके बाद they select you. तो मेरी ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी लोग सिलेक्ट हुए थे, 5 people got selected. तो उसमें से I scored full marks in this. तो वो चीज़ कैसे हुई थी कि मैंने अच्छे से कंट्रीब्यूट करा था, क्वालिटी प्रपोज़ल दिया था और मैंने ब्लॉग्स वगैरह लिखे थे उस टूल के ऊपर एंड आई वाज़ हेवीली इन्वॉल्व्ड विद द कम्युनिटी फॉर 7 to 8 months बिफोर GSoC, नॉट नॉट राइट आफ्टर GSoC। एंड दीज़ आर द स्टैट्स GSoC की इस ईयर की। सो मेनी पीपल से कि बहुत ज़्यादा लोग अप्लाई करते हैं एंड व्हिच एक्चुअली आर। एंड इस ईयर 8.35% was the acceptance rate globally for contributors, but I was 99% sure कि मेरा इसमें हो जाएगा because I followed this. So how I made my 8.35% chance to almost 100%.
सो बाय डूइंग मैं बहुत अच्छी एक टिप देता हूँ तुम्हें कि एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन कैसे चूज करनी है। स्टार्ट बाय चूजिंग ए बिग ऑर्गेनाइजेशन और ए बिग प्रोजेक्ट। द मोर जैसे वेब डेवलपमेंट वगैरह के प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूटर्स होते हैं। सो द मोर नंबर ऑफ पीपल आर देयर द मोर कंपटीशन इट इज एंड ऑल्सो द इजियर द प्रोजेक्ट इज। सो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन और बड़े प्रोजेक्ट्स चूज करो जो कि एक्चुअल में डिफिकल्ट होते हैं। वहाँ पे लोग भी कम होते हैं तो वहाँ पे सिलेक्शन रेट काफी हाई होता है। बट वहाँ पे प्रोजेक्ट भी थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है सो यू हैव टू पुट इन अ लॉट ऑफ एफर्ट एज वेल बाय अंडरस्टैंडिंग थिंग्स। लेकिन अगर एक बिगनर फ्रेंडली कम्युनिटी है और यू आर पुटिंग अ लॉट ऑफ एफर्ट और यू आर स्टार्टिंग बाय गुड फर्स्ट इश्यूज। गुड फर्स्ट इश्यूज करके एक होते हैं जो कि बिगनर फ्रेंडली होते हैं। तो धीरे धीरे यू स्टेप बाय स्टेप कंट्रीब्यूट इन इट और वहां से एक अंडरस्टैंडिंग आ जाती है। सो यू आई गॉट इन्वॉल्व विद द कम्युनिटी एज आई टोल्ड राइटिंग ब्लॉग्स वगैरह सब एंड गॉट फीडबैक ऑन द प्रपोजल। How I did it, I started in November 2024, and this is the best time as well I recommend। और तभी ये सेशन हो भी रहा है क्योंकि अभी मई में जेसॉक होगा। तो now is the best time to start contributing and work upon it। So I knew only Java at that time। I explored all the organizations or I found Jenkins a really good organization। And initially most of my time was spent on reading code, then writing code. Initially, you would be doing lot of reading documentation, reading a module or a package, and you're struggling with the project. So the idea is the more you struggle and the more you learn with the project, that's what is recommended. And doing some classic Googling, not using a lot of AI, and reading a lot of documentation, use the project. So just get your hands dirty. The idea is this. Key takeaways: don't try to understand the complete code base at once. ज़्यादातर जो big organizations होती है, they have a heavily overwhelmed code। इतना बड़ा code base होता है तो it doesn't make any sense to understand all the complete code base at once। Nobody can, at least in start। So just you get a high level overview of the project, what the project is doing। तो जैसे मेरा जेनकिंस का था तो आई न्यू कि जेनकिंस करती क्या है, बेसिक एक ओवरव्यू, नॉट द लो लेवल वन। एंड यू स्टार्ट बाय आइडेंटिफाइंग द गुड फर्स्ट इश्यूज एंड जस्ट ओनली अंडरस्टैंडिंग द पार्ट जितना तुम उस इशू पे काम कर रहे हो। बाकी यू व्हेन यू आर ऑल द वे अप, व्हेन यू आर मेकिंग कॉन्ट्रीब्यूशंस, तो अपने आप ही योर नॉलेज विल गेट इंक्रीज स्टेप बाय स्टेप एज यू आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग। Another way of starting is that most people also do is by fixing test cases or CI pipelines or whatnot। So these test cases are pretty straightforward। So वहाँ से भी एक आइडिया मिल जाता है टेस्ट केसेस को पढ़ के। और the more number of contributions you do, the more understanding you get of the project। Challenges I faced at first, जब when I started in November, even these beginner friendly issues took hours and hours to understand। Like I was spending 5 to 6 hours एक एक इशू पे उसको समझने में, फिर इतनी बार स्टक हो जाते हैं बीच में। यू गेट हेल्प फ्रॉम द कम्युनिटी। अब उसमें भी क्या होता है, मेंटर्स को ज्यादा तंग नहीं कर सकते क्योंकि यू हैव लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस टू आस्क। and I didn't had any idea what to do now बहुत बार। But still, the more you spend time with it, that's a fix on it, and you ask some good questions with the community, तो वहाँ से एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप धीरे धीरे होती है। प्रोजेक्ट seemed overwhelming at first, everyone सबके साथ होता है ये चीज। and being the beginner is the best skills you can have, I think। क्योंकि अ बिगिनर ब्रिंग्स अ फ्रेश पर्सपेक्टिव टू द कोड बेस। जो भी इंजीनियर्स होते हैं, जो अच्छे इंजीनियर्स होते हैं ना, जो कोड बेस वगैरह पे काम करते हैं, उनको इतनी ज्यादा नॉलेज हो जाती है कि वो लोग ना मतलब समझ नहीं पाते चीजें। फिर उनसे कोई ऐसे क्वेश्चन पूछो ना बिगनर फ्रेंडली वाला या कुछ, तो दे टॉक इन अ वेरी हाई लेवल लैंग्वेज। तो जब व्हेन यू आर कमिंग, यू आर ब्रिंगिंग दैट बिगनर्स पर्सपेक्टिव, तो तुम उसी हिसाब से डॉक्यूमेंटेशन वगैरह भी बनाओगे। कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं जैसे
उनकी जो डॉक्यूमेंटेशन होती है वो बहुत इंटरमीडिएट या एडवांस लेवल की होती है, मतलब उसमें प्री रिक्विजिट होता है। सो व्हेन यू आर कमिंग, तो इफ यू हैव अंडरस्टूड द कोड बेस, तुम डॉक्यूमेंटेशन को इम्प्रूव कर सकते हो ताकि और बिगनर्स को स्ट्रगल ना करना पड़े। एंड ऑल्सो यू हैव टू मैनेज GSoC विद योर semester exams as well. This was my first contribution, which was adding a support for scoop distributions. तो जैसे मैक में स्कूप एक पैकेज मैनेजर होता है, जैसे मैक में होमब्रू यूज होता है, विंडोज में स्कूप यूज होता है, which helps to distribute the tool. So I added a support to distribute the plugin modernizer tool with Scoop Package Manager. Pro tip which I have given as well, early start karo, and early is now, time is your best friend. जितना early start करोगे उतना advantage रहेगा. When I started there was no one at that time on my project. बहुत बाद में जाके जनवरी एंड फरवरी के आसपास, जनवरी में भी नहीं, शायद फरवरी मार्च में कंट्रीब्यूटर्स वगैरह कुछ आए थे कंट्रीब्यूट करने. उन्होंने भी इतना कंसिस्टेंटली नहीं करा, तो द मेंटर्स न्यू कि हाँ ये बंदा काफी 7-8 महीने से कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो they knew कि हाँ he can also contribute in the summer as well. The mindset, try to zoom out a bit. एक second, I will also show you the issues as well, कि issues कैसे identify करते हैं. This was my project. So यहाँ पे when you go to issues, you can also filter the issues. कोई भी project है ये सब में होता है. You can filter the issue based upon these tags. So अगर मैं लेट्स से फिल्टर कर रहा हूँ गुड फर्स्ट इशू होते हैं गुड फॉर न्यूकमर्स. सो फिल्टर, अभी करंटली देयर इज ओनली वन इशू दैट इज गुड फर्स्ट. सो यू गो डीपर इनटू इट एंड दिस इज ओपन बाय मी ओनली. सो यहाँ पे you understand this and you start contributing on it, and then you submit a pull request after you are done. So as you can see, I did 56 pull requests in the code. So core issues are the one that are maintenance based. ये भी beginner friendly होते हैं. So you can start with core, good first issues, or testing. These all are beginner friendly issues which can help you get started. Okay. The mindset, what you need is try to zoom out a bit and ask these questions from yourself. Ki, what is the impact of the work that I'm doing? How can I benefit the open source community? How can I create value? How can I be helpful for this organization? And contributions doesn't just mean कि you're writing code, it can be improving the documentation. It can be non-tech contributions like using the tool, and agar if you have any feedback related to the tool is also an contribution. You write blogs for the tool and helping others अगर कोई stuck है और किसी को कुछ resource वगैरह चाहिए. So all these are contributions, and collaboration is the key in open source. Open source has got nothing to do with competition. These programs, GSoC, and there are other prestigious programs as well. They may be competitive, but open source is not. ऐसा नहीं है कि अगर मेरे को open source में contribute करना है, so I have to wait for these programs. I can just start contributing now and open to learn. That's the correct mindset. Why I contributed? Because I find it cool. I want to work with the best engineers in the community. So I want to be part of something really big. I was also checking कि एक Meshri नाम का एक project है अभी. So it's a CNCF based project, Cloud Native Computing Foundation. तो उसमें जो engineers हैं, there's this guy Lee. So he has mentored some of the good industry engineers जैसे शिवे, कुणाल and इन सब लोगों को उसने mentor करा हुआ है. So I really would like to work with them. And you can, इसमें कोई वो नहीं है, it's open and free. Anyone can work with them. That's the best part about it. And I want to apply my skills as well. And interesting take, एक अच्छी बात बताता हूँ कि जो भी ये सारे प्रोग्राम्स होते हैं ना, GSoC हो गया एंड MLH होता है एक जो फेसबुक कराता है, मेटा कराता है.
और आउटरीच ही हो गया लाइनक्स फाउंडेशन का। एनी प्रोग्राम यू टेक, दे आर डोमिनेटेड बाय इंडियन स्टूडेंट्स। मतलब इतने सारे प्रपोजल्स होते हैं, ग्लोबल प्रोग्राम है, बट स्टिल एनी प्रोग्राम इट इज, नो मैटर व्हाट द टाइम जोन इज, चाहे यूएस टाइम जोन है, चाहे कोई भी और, डिस्कॉर्ड पे चले जाओ, तुम स्लैक पे चले जाओ, these are dominated by Indian students, it कि काफी लोग इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं, बट कहीं ना कहीं ये चीज इतना ओवर कॉन्ट्रीब्यूशंस की वजह से थोड़ी सी मिसगाइडेंस भी क्रिएट करती है। तो एक अनकन्वेंशनल एडवाइस आई वुड लाइक टू गिव कि when you see on YouTube, when you search, let's say GSoC, so you see a lot of videos like these. This. Don't watch any of these videos. Is that what I would recommend? Because let me tell you a reason कि why ये videos अच्छी नहीं होती, क्योंकि they are more focused on the money part that what GSoC is giving, and hiding all the open source value that you're getting and the open source mindset or spirit. So it's not a correct mindset, and they are more focused on the money. This is also money, and they will get you stuck in tutorial hell. You will be watching these videos and not understanding what open source is. Open source is about creating value, and it's not at all competitive. They will tell you that GSoC is very competitive and you have to do a lot of hard work. That's not at all true. You have to just contribute in open source in order to get selected for GSoC. And rather, what I would prefer is, I haven't watched any single of these videos when I did GSoC. Uh, what I would do is learn from the correct sources. So this is the documentation of Google Summer of Code, और the best part about is कि ये किसने लिखी है, ये उन्हीं contributors ने लिखी है who have graduated from Google Summer of Code. So अभी तक I told कि 19,000 कुछ contributors थे. So these are the experiences and learnings from their contributions. तो यहाँ से हम सीख सकते हैं, इसमें सब कुछ मेंशन है, ब्रीफ हिस्ट्री, गोल्स ऑफ द प्रोग्राम, व्हाई शुड आई अप्लाई, अराउंड 20 पेजेस की आई थिंक ये डॉक्यूमेंटेशन है इनकी, एंड हाउ डू यू मेक योर फर्स्ट कॉन्टैक्ट, हाउ टू बिगिन पार्टिसिपेटिंग इन कन्वर्सेशंस, everything they have mentioned. It's a very good documentation, highly recommended. And what if you're not selected for GSoC? What if you're turned down? Everything they've mentioned. So just try things out, read the contribution guide, get started, get your hands dirty, and contribute to a large organization. And what if I'm not selected? It's don't worry, you can still contribute to the organization. All the learnings that you get uh, via open source, via GSoC, everything you will get from open source apart from the stipend. So you're not missing out on anything. And वो चीज़ तो ठीक है, स्टाइपेंड वगैरह सब हो जाता है बाद में, एंड फीडबैक इज अ गिफ्ट. So the more you work with these maintainers, they provide you feedback with what you are doing, and the better you become. Study a lot, care a little is what I would say. कि इतना रिजल्ट्स वगैरह पे या जीसॉक पे फोकस मत करो, जस्ट स्टार्ट कंट्रीब्यूटिंग इन ओपन सोर्स. एम आई गुड इनफ? तो ये भी एक थॉट आता है सबके माइंड में. तो इसके लिए कुछ मिथ्स हैं. दैट ब्रिंग्स मी टू माय नेक्स्ट पॉइंट. You have to be a coding expert in order to contribute is a myth, and you should know the complete tech stack of the project. That's also a myth. Even if you're 30 or 40% familiar, you're good to go. You must not have to be a coding expert. These organizations are very beginner friendly and inclusive. They help you if you are ready to help yourself. You can't do GSoC in your first year. That's also another myth. Some people or some videos tell you that you can't do GSoC in a first year. You do it in a second year or third year. But that's not at all true as well. बहुत लोग first year में करते हैं. So it's a very tough to crack. That's also a myth. You need to be from a CS background. ऐसा भी कुछ नहीं है. And I also saw a LinkedIn post stating कि someone had cracked GSoC. So they were saying कि
open source is too competitive because I have cracked GSoC and there are so many proposals this time. This is a misstatement. GSoC is competitive, but open source is not. Role of AI कि इन सब में AI कहाँ पे fit होता है. So when you're making proposals or when you're contributing, what I would recommend is start with a good mindset कि you have to understand things with AI, not to implement. Most people they do what? कि they just focus on um, doing the things done with the help of AI. कि chat GPT पे डाला, LLM पे डाला and just you're doing the things, not understanding what they're doing. So वो चीज़ एक bad way है of using AI. Rather, I would use AI as my tutor to learn and to make myself better. That's the correct way of using it. Staying and giving back. So after you complete your GSoC, if you get selected, or if you're not as well, you stay with the community and you give back. That was the point I've also mentioned previously. This was the main goal. You stay, you contribute and create value. And after you are done, you have some experience, you share that with the others who are who help like जब मैंने भी start करा था, there was someone who helped me. So I would like also to help others. So that's the mindset. These are some of the major open source programs that also pay well and are also prestigious. Google Summer of Code, you all know now. MLH Fellowship, Outreachy, Season of Docs, LFX Mentorship. This is conducted by Linux, Summer of Bitcoin, and everything. This is Red Hat open source context. So, I would like to leave my talk with some action items. So, Ronak, what can I do now? Action items. GSoC contribution guide, just read it. Check out the past GSoC 2025 organizations and see where your interest lies. You start by involving with the community, join all their Slack channel, mailing list, Gitter, and everything they use for the communications. And you use the project and then you contribute and contribute. So just get started. That's what is the main thing. So now we will take questions and also you can just scan this QR code to get all the slides. You can also share the link as well in the chat. Just feel free to ask कोई भी question हो open source से related या GSoC से. Kevin? और भैया जैसे आपने बोला था कि बड़ी ऑर्गेनाइजेशन यूज करनी चाहिए, Mhm. तो उसमें हमें मतलब फिल्टर किस चीज में करना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन चूज करने में, मतलब कि जिसका कोड बेस अच्छा हो या फिर मतलब दे आर लार्जर उसमें, या फिर हमें जिस टैग का आता है उसका हमें चूज करना चाहिए। सबसे पहले फर्स्ट थिंग रखना कि यू शुड चूज अ बिग ऑर्गेनाइजेशन, बिग इन टर्म्स ऑफ द कोड बेस, द कम्युनिटी. जब ज्वाइन करोगे किसी भी कम्युनिटी का, उनका कोड बेस बहुत बड़ा होना चाहिए और उनके बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होने चाहिए. जैसे मैं एक अच्छी कम्युनिटी दिखाता हूँ. फिल्टर्स अकॉर्डिंग टू द टेक स्टैक होते हैं. जैसे मेरे को
ऑर्गेनाइजेशंस पे गया मैं GSoC के पेज पे, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड क्लाउड नेटिव पे मेरे को कंट्रीब्यूट करना है। सो दिस इज़ अ मेशरी ऑर्गेनाइजेशन और ये इनकी आइडियाज़ लिस्ट होती है। आइडियाज़ लिस्ट होता है जो ये गूगल को सबमिट करते हैं कि ये प्रोजेक्ट्स हमारे पास हैं और इन प्रोजेक्ट्स पे हमें कंट्रीब्यूटर्स चाहिए। तो यहाँ से पता चल जाएगा, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं और यहाँ पे इनका टेक स्टैक एंड ऑल दे हैव मेंशन्ड। तो लेट्स से आई जॉइन देयर मेलिंग लिस्ट और उप्स, जैसे इनका मैं स्लैक चैनल दिखाता हूँ। सो दिस इज द मिस्ट्री स्लैक चैनल। सो इट्स हाईली एक्टिव, एक्टिव भी होनी चाहिए कम्युनिटी। लाइक इस पे अभी मैसेज करोगे अभी रिप्लाई आ जाएगा, ऐसी चीज होती है। बहुत एक्टिव है कम्युनिटी एंड देयर आर लॉट ऑफ चैनल्स। इससे पता लग जाएगा कि ऑर्गेनाइजेशन और कम्युनिटी काफी बड़ी है और पॉपुलर भी होती है ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस। जैसे कि टेंसर फ्लो है, AIML की, वो भी ओपन सोर्स्ड है। तो ये सारी पॉपुलर ऑर्गेनाइजेशंस है, थोड़ा बहुत सर्च करोगे पता लग जाएगा ये तो। एंड हमें बिगिन कौन सी लैंग्वेज से करना चाहिए? जैसे अगर पाइथन आती है, HTML CSS एंड वेब डेव का आता है, तो डू वी हैव टू लर्न जावा फॉर टू सेट अप द मार्क? कोई ऐसा बेस्ट लैंग्वेज नहीं होती, यू कैन जस्ट बिगिन विद एनी लैंग्वेज। लेट्स से यू वांट पाइथन, तो यू सर्च फॉर पाइथन, पाइथन बेस्ड प्रोजेक्ट्स आ जाएंगे। Django is a Python framework and is itself open source that takes part in this program. Let's say Kevin mentioned Chromium, तो Chromium गूगल की खुद की ओपन सोर्स वो है और इट itself takes part in ओपन सोर्स इस GSoC में। तो बट कोई इसमें भी फिर वही वाला पॉइंट आ जाएगा ना कि बहुत सारे लोग होंगे तो सिलेक्शन रेट कम हो जाएगा MSM में। नहीं, वो जो मैंने जितना जनरली देखा है, जो ये होता है कंपटीशन, वो वेब डेवलपमेंट बेस्ड प्रोजेक्ट्स में होता है। तो जो ये बैकएंड वगैरह बेस्ड होती है ना, जैसे जावा वगैरह हो गई और गोलैंग हो गई, इन सब में या बड़े प्रोजेक्ट्स में कंपटीशन इतना नहीं होता। तो यहाँ से एक्सप्लोर कर सकते हो कि कंपटीशन है नहीं, वो जाके देखना पड़ेगा उस ऑर्गेनाइजेशन में, पता चल जाएगा। एंड फॉसोलॉजी जैसे ही करके, हाँ। जब जैसे ही जब गूगल अपनी ऑर्गेनाइजेशंस पब्लिश करता है, कि एक डेट आती है जब GSoC का ये लोग अनाउंस करते हैं, तो उसी टाइम हम जो क्वेरीज हैं वो देख सकते हैं ना कि मतलब क्या क्या क्वेरीज है ऑर्गेनाइजेशन को जो उसको रिजॉल्व करनी है, एंड हम उसमें उसी टाइम से कंट्रीब्यूट करना स्टार्ट कर सकते हैं अगर हम मतलब जब सिलेक्शन भी नहीं हुआ होता। जैसे अभी का बताता हूँ, अभी गूगल ने ऑर्गेनाइजेशंस लिस्ट नहीं करी हैं। तो 2026 में जो GSoC होना है, तो वो अभी पता नहीं है कि कौन-कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस नेक्स्ट ईयर में अपीयर होंगी। बट उसका वेट नहीं करना होता, यू कैन जस्ट प्रिडिक्ट कि नेक्स्ट ईयर में कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस आई हैं बेस्ड अपॉन द पास्ट रिकॉर्ड। जैसे ये 2025 का रिकॉर्ड है, यू कैन आल्सो सर्च फॉर 2024 GSoC एंड द पास्ट ईयर्स एज़ वेल। तो ये गूगल की आर्काइव जो होती है, यहाँ पे सारे ये 2024 का प्रोग्राम है और यहाँ पे कॉमन ऑर्गेनाइजेशंस ढूँढो जो पास्ट 5-10 सालों से आ ही रही है। अगर कोई 5-10 साल से ऑर्गेनाइजेशन आ रही है, मोस्ट प्रोबेबली वो नेक्स्ट ईयर भी आएगी। तो यहाँ से तुम्हें पता चल गया कि ये वाली ऑर्गेनाइजेशंस अपीयर होने वाली है, जस्ट स्टार्ट डायरेक्टली कंट्रीब्यूटिंग टू दैट ऑर्गेनाइजेशन और वेट मत करो कि गूगल कब रिलीज़ करेगा या क्या। गूगल तो जनवरी-फ़रवरी के अराउंड रिलीज़ करता है, उस टाइम पे इतना थोड़ा लेट तो हो ही जाता है। एंड इसका मतलब बेसिक टाइमलाइन 3 मंथ्स ही होता है या फिर मतलब क्योंकि बहुत लोग 5.5 मंथ्स भी कंट्रीब्यूट करते रहते हैं। स्टैंडर्ड 3 मंथ का होता है, बट अगर जैसे प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल हो गया है या फिर इम्प्लीमेंट करते-करते टाइम, जब इम्प्लीमेंट कर रहे थे तब तो सोचा था कि इतना काम है, बट जब करने गए तो ऐसा होता है कि नहीं, और ज़्यादा बहुत ज़्यादा काम हो गया है, तो फिर प्रोजेक्ट एक्सटेंड हो जाता है। तो वो मतलब वो कंट्रीब्यूटर और मेंटर के बीच की बात होती है। तो अगर कोई कंट्रीब्यूटर और मेंटर दोनों एग्री करते हैं कि हाँ, ये प्रोजेक्ट हमें एक्सटेंड कराना है, तो उसकी टाइमलाइन 1-2 महीना एक्सटेंड हो जाती है, बट स्टैंडर्ड 3 मंथ्स का होता है। तो वो बट लास्ट नवंबर तक चलता है, नवंबर तक सब खत्म हो जाता है। ओके ओके। और अगर जैसे टाइमलाइन का ही मैं पूछ रहा था, अगर जैसे लार्ज कोड बेस है और थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया हमारे, और हमने जो हुँ। प्रपोजल में आया कह रहा था कि इतना टाइम नहीं लगेगा, तो उसमें दिक्कत तो नहीं होती?
नहीं, इवन इफ यू हैव डन 50% ऑफ द प्रपोज़ल में जो लिखा है ना, वो भी इम्प्लीमेंट करें ना उन 3 महीनों में, तो भी मतलब दे पास और फेल यू उसमें GSoC में। जब GSoC की सिलेक्शन हो जाती है, उसके बाद दे सी योर वर्क एंड दे इवैल्यूएट यू, और तुम भी इवैल्यूएट करते हो मेंटर्स को और मेंटर भी तुम्हें करते हो, और ये पूरी रिपोर्ट गूगल को सबमिट करनी होती है। तो उसमें एक स्कोर देते हैं वो मेंटर्स, तो अगर वो फेलिंग स्कोर है, सो यू आर डायरेक्टली आउट ऑफ द GSoC सिलेक्ट होने के बाद भी। तो यू हैव टू पास दैट, और वो पास तभी वो करते हैं जब इफ यू आर रेगुलर विद द मीटिंग्स वगैरह, और दोनों सेम पेज पे हो, यू एंड योर मेंटर, दे विल जस्ट पास यू। इवन इफ यू हैव डन 50% ऑफ व्हाट्स रिटन इन द प्रपोजल, दैट्स फाइन। Okay, thank you. It was a great session. नो प्रॉब्लम, थैंक्स फॉर आस्किंग। एनी अदर क्वेश्चंस गाइस? आई थिंक नो। केविन? एक मेरा भी क्वेश्चन है। हाँ, पूछ। तो अनाउंस कर देना चाहिए वो चीज़। गिट गिटहब वाली? हाँ। कर दे। सो गाइस, एक हमने प्लान करा है इवेंट रखने का गिटहब पे, हैंड्स ऑन वर्कशॉप होएगी वो पूरी की पूरी। सो क्रू मेंबर्स के लिए ऑफ कोर्स वो पहले ही हो जाएगी, आई गेस इन मिड ऑफ December. The dates will be notified to you, and for all the other members, all the other participants, वो चीज़ होएगी मे बी Jan 2nd or 3rd week. So be ready. स्क्रैच से प्रॉपर एक गिट गिटहब की वर्कशॉप, गिट क्या होता है, गिटहब क्या होता है, एवरीथिंग, डेमो, वर्क, हैंड्स ऑन, सब कुछ। मेरे को एक और डाउट था, जैसे हमने एक प्रोजेक्ट बनाया है नॉर्मल सा, जैसे कोई HTML हम्म। CSS वेब डेव का, उसको ही अगर हम गेटअप पे पोस्ट कर दें अपनी प्रोफाइल पे, तो विल दैट बी पार्ट ऑफ ओपन सोर्स या फिर कुछ और भी करना पड़ता है? Is it? If it is a public repository, then it is part of open source. तो कि पब्लिक रिपोजिटरी मतलब? मतलब गिटहब पे आपने पोस्ट करा, अपना पुश करा प्रोजेक्ट, तो अगर वो पब्लिक है, मतलब उसको कोई भी देख सकता है, तो वो ओपन सोर्स का पार्ट है, तो उसमें कोई भी पुल रिक्वेस्ट वगैरह कुछ भी कोई कंट्रीब्यूट कर सकता है आपके प्रोजेक्ट में, तो वो ओपन सोर्स। लेकिन अगर आप रेपो ही प्राइवेट कर दोगे, तो फिर वो प्राइवेट हो जाएगी, फिर वो तो वो किसी को कोई नहीं कर नहीं दिखेगी। पाएगा? हाँ। ओके ओके, और थैंक यू। और पब्लिक ही होती है जनरली, रेपोस गिटहब पे कोई भी देख सकता है, कोई भी उसमें मॉडिफाई कर सकता है। मतलब आप मॉडिफाई करने के लिए भी परमिशन चाहिए, वो पुल रिक्वेस्ट सबमिट करेगा कोई, फिर जब तक आप अप्रूव नहीं करोगे वो मॉडिफिकेशन होगी नहीं। ऐसा नहीं है कि कोई भी कुछ भी गिटहब पे डालेगा तो चेंज कर देगा कोड में, बट हाँ, वो ओपन सोर्स है। ओके। I also have a doubt. या श्योर। हाँ, तो जैसे जेसोक आपने कहा कि अभी जैसे मतलब आप देख सकते हो कि क्या क्या आपको मतलब टेक स्टैक सीखने हैं, थोड़ा नॉलेज ले सकते हो, तो जो प्रोजेक्ट्स जैसे कंट्रीब्यूट करना होता है, तो जब वो ऑर्गेनाइजेशन अपने कंट्रीब्यूशन डालेगी वो ही करने होते हैं प्रोजेक्ट्स, से आपको पहले से कुछ प्रिपेयर करके रखना पड़ता है प्रोजेक्ट्स? वो ऑर्गेनाइजेशन बताएगी, लाइक जैसे ये थी ना, वो हम्म। आइडिया लिस्ट सबमिट करते हैं गूगल को। जो भी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, वो गूगल को जनवरी फरवरी के अराउंड आइडिया लिस्ट सबमिट कर देते हैं कि हमें इन सारे प्रोजेक्ट्स पे कंट्रीब्यूटर्स चाहिए, ये सारे हमारे प्रोजेक्ट्स हैं। तो प्रोजेक्ट वगैरह हमें प्रपोज करने की जरूरत नहीं है, वो ऑर्गेनाइजेशंस ही करती है। जैसे आई विल शो यू। अच्छा, तो 2024 का है। जैसे ये मेस्ट्री की आइडिया लिस्ट है, तो 2025 में ये 8 प्रोजेक्ट्स थे जो उन्होंने गूगल को सबमिट करे। इसमें से भी गूगल सेलेक्ट करता है कि कुछ 5 या 6 प्रोजेक्ट्स ही जाएंगे।
सो यू ओके। जस्ट ऑर्गेनाइजेशन से कॉन्टैक्ट कर सकते हो और डोंट वहाँ पे जाके डोंट से कि मेरे को GSoC में कंट्रीब्यूट करना है क्योंकि वो चीज़ थोड़ी वो हो हुँ। जाती है। वहाँ पे जस्ट ओपन सोर्स में एंड जस्ट डोंट से एक्चुअली मैं भी ओपन सोर्स के लिए बस वहाँ पे कंट्रीब्यूट कर रहे हो उस ऑर्गेनाइजेशन में। तो उनको लगता है कि हाँ, ओके, ये पोटेंशियल कैंडिडेट हो सकता है और इफ यू हैव सबमिटेड अ प्रपोज़ल तो वो दे हुँ, लुक फॉर यू एज़ वेल। ओके। तो मीन्स आफ्टर जब वो कंट्रीब्यूशन पोस्ट कर दे, उसके बाद हमें मतलब प्रपोज़ल सबमिट करना होता है? हाँ, प्रपोज़ल अराउंड मार्च के आस-पास सबमिट करना होता है। ओके, जब वो लोग डिमांड ओके। करते हैं प्रपोज़ल की ना टाइमलाइन होती है, वो गूगल के पोर्टल पे हुँ, सबमिट करना होता है। तो ओके, जब ओके। गूगल अपनी साइड से टाइमलाइन ओपन करता है तो मैं हुँ, इसकी टाइमलाइन दिखाता हूँ, तो तब हमें प्रपोज़ल सबमिट करना होता है। लेकिन कंट्रीब्यूट करने के लिए कोई टाइमलाइन नहीं होती, यू कैन जस्ट गो एंड कंट्रीब्यूट टू दैट प्रोजेक्ट। इवन अगर कोई प्रोजेक्ट है जो GSoC में नहीं भी आने वाला और तब भी आप उस हाँ, ऑर्गेनाइज़ेशन में कंट्रीब्यूट कर रहे हो ना, तो दैट्स अ गुड थिंग। वो ऑर्गेनाइज़ेशन देख रही है कि हम ये प्रोजेक्ट GSoC में नहीं दे रहे, तब भी द कंट्रीब्यूटर इज़ इंटरेस्टेड, तो ही इज़ इंटरेस्टेड इन द वर्क, तो वो तब भी सिलेक्ट कर लेते हैं वो। क्योंकि उनको बस प्रूफ ओके, ऑफ वर्क देखना है कि ऑर्गेनाइजेशन में एक्टिव है, कंट्रीब्यूशंस चल रही है, तो दे सिलेक्ट यू। ओके, अम, हाँ, दिस इज़ द 2025 टाइमलाइन। यहाँ पे जनवरी के आसपास ऑर्गेनाइजेशंस की जैसे हम अप्लाई करते हैं कंट्रीब्यूटर्स ऑर्गेनाइजेशंस अप्लाई करती है, तो उनकी एप्लीकेशन शुरू हो जाती है और फिर उसके बाद इनकी डेडलाइन है और दे गूगल सेलेक्ट करते हैं ऑर्गेनाइजेशंस कौन-सी अपीयर होंगी इस टाइम और फिर पब्लिक हो जाती है फ़रवरी 27 के अराउंड एक्सेप्टेड ऑर्गेनाइजेशंस। एंड देन उसके ओके, बाद प्रपोज़ल एंड कंट्रीब्यूटर एप्लीकेशन पीरियड मार्च के आसपास दे स्टार्ट। यहाँ इस टाइम पे प्रपोज़ल सबमिट करना होता है। तो तब तक बट जो लोग सीधा मार्च या इस टाइम पे आते हैं, उतना इतना एडवांटेज नहीं होता, तब तक बहुत लेट हो चुका होता है। बट जो पहले से ही कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, दे गो फॉर दीज़ स्टूडेंट्स और कैंडिडेट्स। ओके, थैंक यू। नो प्रॉब्लम। मेरे को एक और डाउट था, जैसे आपने बोला था कि मेंटर्स से क्वेश्चंस आस्क आस्क कर सकते हैं बीच में प्रोजेक्ट के, हुँ। तो इज देयर नो इंटरव्यू और मतलब कि एक पर्सनल कॉल नहीं होती पहले प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले, मतलब मेंटर से इंट्रोड्यूस करने के लिए या फिर पूरा समझने के लिए सब कुछ? ये ऑफ़िशियल मीटिंग्स हेल्ड होती है जो कि GSoC की होती है, वो इन GSoC पीरियड होती है, मतलब जब आप सिलेक्ट हो चुके होते हो। उससे पहले यू आर जस्ट अ कंट्रीब्यूटर, ऐसे कोई इंटरव्यू या कॉल वगैरह नहीं होता। सिलेक्शन के बेस पे वो 3-4 चीज़ें ही रेट करते हैं, तुम्हारी प्रूफ ऑफ वर्क होता है कंट्रीब्यूशंस का और प्रपोज़ल कैसा है और कम्युनिटी की इन्वॉल्वमेंट कैसी है, इनके बेस पे वो सिलेक्ट करते हैं। और इसमें भी इट डिपेंड्स ऑन द ऑर्गनाइज़ेशन, कुछ ऑर्गनाइज़ेशंस होती हैं, जब जैसे 2-3 स्टूडेंट्स में चूज़ करना हो कि दोनों ही पोटेंशियल कैंडिडेट है, तो कभी-कभार ऐसा भी हो जाता है कि वो इंटरव्यू कंडक्ट करा लेते हैं, बट मोस्टली ऐसा नहीं होता। एंड अगर क्वेश्चंस पूछने तो हमें उनकी चैट में टाइप करना पड़ता है, फिर कोई सोर्स पोर्टल है या फिर? मैंने दिखाया ना इसमें GSoC के इसमें जाओगे, यहाँ पे दे हैव ऑल दीज़ थिंग्स जहाँ पे वो कम्युनिकेशन के लिए यूज़ करते हैं। चैट के लिए रीडायरेक्ट हो जाएगा इनका स्लैक चैनल पे देखो, जो मैंने खोल के दिखाया था ये वाला। यहाँ पे हम्म। स्लैक में चैनल्स हैं, यहाँ पे न्यूकमर्स करके एक चैनल है, यहाँ पे न्यूकमर्स अपनी वो इंट्रो पोस्ट कर सकते हैं, क्वेश्चंस पूछ पूछ सकते हैं। एक ये स्लैक का चैनल हो गया, कुछ ऑर्गनाइज़ेशंस गिटर यूज़ करती है, तो वो चैट के लिए दे डिपेंड ऑन द ऑर्गनाइज़ेशन टू ऑर्गनाइज़ेशन, सबका अपना-अपना होता है, कुछ ईमेल्स के थ्रू भी कम्युनिकेट करते हैं। तो गूगल समर ऑफ कोड के पोर्टल पे सब कुछ लिस्टेड है। मतलब हम ऑर्गेनाइजेशन में फिर भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं अगर हम जीसॉक में नहीं कर रहे कि इससे स्लैक चैनल से? हाँ, ओपन सोर्स में तो कभी भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। उसका हम्म। प्रोग्राम्स वगैरह इन सब से कोई रिलेशन नहीं है और ऑल द लर्निंग्स यू आर गेटिंग फ्रॉम दीज़ प्रोग्राम्स वो सब ओपन सोर्स में मिलेंगी।